चंद्राबाबू नायडू 3 साल में अमरावती की तामीर मुकम्मल करेंगे। अमरावती की तरक्की से आंध्र प्रदेश की जीडीपी में इजाफा होगा। अमरावती की तामीर व तरक्की में मैं आपके साथ खड़ा हूं, वजीर आज़म मोदी। मरकजी हुकूमत अमरावती को आलमी सतह का शहर बनाने में ताउन करेगी। और मैं कह सकता हूं, जैसा बाबू ने 3 साल में अमरावती के निर्माण का जो सपना देखा है, इसका मतलब ये 3 साल की सिर्फ अमरावती की गतिविधि आंध्र प्रदेश के जीडीपी को कहां से कहां पहुंचा देगी, ये मैं साफ देख रहा हूं। मैं आंध्र प्रदेश की जनता को, यहां जो मेरे सहयोगी बैठे हैं, सभी को फिर आश्वस्त करता हूं, आंध्र प्रदेश की प्रगति के लिए आप मुझे हमेशा अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए देखेंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मी अंदरी आशीर्वाद मुतो ఈ కుటుంబీ आंध्र प्रदेश अभिवृद्धि की कट्टुबड़ी उन्नति। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्राबाबू नायडू ने ऐलान किया है कि भारत का पहला क्वांटम वैली टेक पार्क 1 जनवरी 2026 को अमरावती में इफ्तिताह किया जाएगा। IBM, TCS और LT के साथ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं ताकि जदीद क्वांटम कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जा सके। IBM का 156 की वबट हीरो प्रोसेसर पर मबनी क्वांटम सिस्टम 2 भारत का सबसे ताकतवर क्वांटम कंप्यूटर होगा। ये अक़दाम आंध्र प्रदेश को आलमी क्वांटम तहकीक, इख्तिरा और गवर्नेंस का मरकज़ बनाने की समत एक तारीखी कदम है। ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी से ही दलित, कबायली और पसमानदा तबकात को इंसाफ मिलेगा। स्पीकर गुड्डम प्रसाद कुमार मरकज़ ने ज़ात गिनती पर तारीखी फैसला लिया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना ने मरदमशुमारी मुकम्मल करके मुल्क को रास्ता दिखाया। तेलंगाना पहला रियासत है जिसने SC दर्जा बंदी बिल को असेंबली में मंजूर करके इस पर अमल दरामद शुरू किया। దేశంలో జనాభా లెక్కలతో పాటు కులగణన చేపట్టాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం చారిత్రాత్మక నిర్ణయం। కులగణనతో దేశంలో మెజారిటీలో ఉన్న దళిత, గిరిజన, వెనుకబడిన వర్గాలకు సరైన న్యాయం జరుగుతుంది। పెరిగిన జనాభాకు అనుగుణంగా వెనుకబడిన తరగతుల వారికి విద్య, ఉద్యోగ, రాజకీయ పదవులతో పాటు న్యాయమైన వాటాలు దక్కుతాయి। కులాల జనాభా లెక్కించడం ద్వారా ఆ సంఖ్య ఆధారంగా నిధులు, సంక్షేమ పథకాలు అందుతాయి। రాజ్యాంగ నిర్మాత శ్రీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు కన్న కలలు నిజమవుతాయి। రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలోని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కులగణన పూర్తి చేసి దేశానికి దిక్సూచిగా నిలిచింది। బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలని శాసనసభ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేసింది। శాసనసభలో ఆమోదం పొందిన బీసీ రిజర్వేషన్ల బిల్లును ఆమోదించి రాష్ట్రపతి గారికి పంపినందుకు రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ జిష్ణుదేవ్ వర్మ గారికి ధన్యవాదాలు। శాసనసభలో ఎస్సీ వర్గీకరణ బిల్లును ఆమోదించి అమలు చేస్తున్న మొదటి రాష్ట్రము తెలంగాణ రాష్ట్రం। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజాప్రభుత్వంలో వెనుకబడిన తరగతులకు పెద్దపీట వేస్తున్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారికి, మంత్రివర్గ సభ్యులకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను। కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా తొందరగా కులగణన పూర్తి చేయాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను। कांग्रेस हुकूमत तमाम शुबों में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। किसानों को ना पानी दे रहे हैं, ना फसलें खरीद रहे हैं। किसान भरोसा नहीं दिया गया, कर्ज मुआफ़ी भी आधी नहीं हुई। खुद कांग्रेस के MLEs ये बात कह रहे हैं। किसानों को बोनस कितना दिया, धान कितना खरीदा, कुछ भी नहीं दिया, उल्टा 7 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा दिया। मूसा नदी और हाइड्रा पुलिस स्टेशन जैसे फैसलों से आवाम को नुकसान पहुंचा है। साबिक वजीर संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी నీళ్ళు ఇమ్మంటే నీళ్ళు ఇయ్యక రైతులు కింద మీద పడి కష్టపడి వాళ్ళు పంటలు పండిస్తారంటే ఆ పండించినటువంటి పంటలు కొనక, కొంటే ధాన్యం ఎత్తక, ఎత్తితే లారీలలో నింపక, నింపితే ఈ లారీలు పోయాడు అన్లోడ్ కాక, ట్రక్ షీట్ జనరేట్ కాక, రోజులు కాదండి వారాలు పడి కాపులు ప్రతి చోట రైతులు ఆందోళన చేస్తున్నారు। ఇదేం దరిద్రం నాకు అర్థం కాదు। ఇంత కష్టపడి రైతులు ఇన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులలో నువ్వు రైతు బంధు ఇవ్వకపోతే 4 ఎకరాల లోపు ఇచ్చి ఇచ్చిన ఇంకా కొంతమందికి ఇయ్యనే లేదు।
ఇక మార్చి 31 వరకల్లా ఎట్టి పరిస్థితులలో పూర్తి చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి గారు నోటి నుంచి వచ్చే మాట. మార్చి 31 అయిపోయినాక వ్యవసాయ మంత్రికి చెప్పి క్షమాపణలు చెప్పించి మన్నించండి రైతులు మన్నించండి, ఆలస్యమైంది మన్నించండి అని చెప్పి ఎవరు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన నోటితో చెప్పించే మన్నించండి అంటే క్షమించమనే కదా, చేతులు ఎత్తేసినా మా వల్ల కాదు క్షమించండి అని చెప్పి. రుణమాఫీ అయిపోలే, ఇంకా రుణమాఫీ సగం కూడా కాలేదని మేం కాదు, మేము చెప్తే ఏదో రాజకీయంగా చెప్పినా విపక్ష పార్టీ చెప్పింది. మీ ఎమ్మెల్యేలే మాట్లాడుతున్నారు కదా, మీ ఎమ్మెల్యేలే చెప్పారు కదా. తడిసిన ధాన్యానికి వడగండ్లు వచ్చి నష్టపోయినటువంటి దానికి ఏ సహాయం లేదు, ఏ రైతుకు దక్కలే. పోయినసారి ఇచ్చినటువంటి బోనస్ మీరు ప్రకటించింది ఎంత, ఇచ్చింది ఎంత, ముట్టింది ఎంత, ఒకనాడని లెక్క చెప్పిందా? మొత్తం పండిన ధాన్యం ఎంత, మీరు ఇచ్చింది ఎంత, ఎంతమంది రైతులకు ఇచ్చిన ఎంత అమౌంట్ ఇచ్చింది లెక్క చెప్పలే. ఈసారి మళ్ళీ ధాన్యం తీసుకుంటున్నారు, ముప్పు తిప్పలు పెట్టి తీసుకుంటున్నారు. సరే ఎట్లనోలాగా రైతు ఇస్తున్నాడు, కష్టపడుతున్నాడు, వారం 10 రోజులు 15 రోజులు కళాలు పొడితే పడిగాపులు కాస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు సేకరించింది ఎంత, దాంట్లో ఇచ్చిన బోనస్ ఎంత? ఇస్తున్నా అసలు బోనస్ ఇయ్యదలుచుకున్నారా? బోనస్ ఇవ్వరు. అంటే ఏదైనా మాట మార్చి దాన్ని జాప్యం చేసేసి జనం మధ్యలో వాళ్ళు మర్చిపోయేటట్లు చేస్తే ఆ అంశం వెనక్కి పోయినట్లే అని భావిస్తున్నా. దగ్గర 1,50,000 కోట్ల అప్పు చేస్తారు. మరి ఇవేమి ఇవ్వకుండా ఏం చేయకుండా ఇచ్చిన హామీలకు సంబంధించి ఏం చేయకుండానే 1,50,000 కోట్ల అప్పులు చేస్తారు. అప్పులు చేసి మళ్ళీ मीदुक के जिनौर में होने वाली लड़ाई की वजह बनने वाले मदरसे में 70 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनमें से 65 बच्चे बिहार के किशनगंज के हैं। किशनगंज में बांग्लादेशी गैर कानूनी तौर पर आकर मकामी हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं और हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करके लैंड जिहाद में मुलव्वस हैं। ऐसे किशनगंज के लोग मेडिक के जिनौर क्यों आए? उनका जिनौर से क्या ताल्लुक है? एंडवमिनट की जमीनों पर मदरसा कैसे आया? इसका जवाब पुलिस अफसरान और कांग्रेस हुकूमत को देना होगा। रघुनंदन राव, मेडिक एमपी। జిన్నారం మదర్సాలో ఏం జరిగిందనేటువంటి విషయంలో ఒక నలుగురం గత వారం రోజులుగా అక్కడ ఏం జరుగుతుందనేటువంటి విషయంలో విచారణ జరిపినప్పుడు మొత్తం తెలంగాణ కాదు దేశం మొత్తం ఆశ్చర్యపోల్సినటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి. అక్కడ ఆ మదర్సాలో 70 మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. జిన్నారం దగ్గర ఘర్షణ కారణమైనటువంటి మదర్సాలో 70 మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. ఎక్కడోళ్ళు? జిన్నారం వాళ్ళు, బొల్లారం వాళ్ళు, పటాన్చేరు వాళ్ళు, రామచంద్రపురం వాళ్ళు, సిద్దిపేట వాళ్ళు, ఇంకెవరో పక్కోళ్ళేమో అనుకున్నా నేను. మొత్తం విచారణ చేసి చూస్తే తేలింది ఏంటంటే ఆ 70 మందిలో 65 మంది 70లో 65 మంది పిల్లలు మీది ఏ ఊరు అని అడిగినప్పుడు వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన సమాధానం కిషన్గంజ్ బీహార్ అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు దయించి సభ్య సమాజం హిందువులు మొత్తం ఆలోచించాలి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిరట? కిషన్గంజ్ అనే జిల్లా నుంచి, బీహార్ నుంచి వచ్చినాము అని చెప్తున్నారు. మీ తల్లిదండ్రులు ఎక్కడున్నారు అని అడిగినాం. నెక్స్ట్ ప్రశ్న, మా తల్లిదండ్రులు అంతా బీహార్లోనే ఉన్నారు సార్ అని చెప్పారు వాళ్ళు. సో తల్లిదండ్రులు బీహార్లో ఉన్నారు, వాళ్ళు పుట్టింది బీహార్లో, వచ్చింది ఎక్కడికి? జిన్నారంకి వచ్చారు. పోనీ జిన్నారం ఏదో పెద్ద హైటెక్ సిటీ, అదేదో పెద్ద మున్సిపాలిటీ, సర్వాంగ సుందరంగా ఉంది, వీళ్ళు వచ్చిరు ఆడేదో చేస్తున్నారు, అదేదో కాస్మోపాలిటన్ సిటీ అంటే కాదు, చిన్న మండల కేంద్రం. ప్రశాంతంగా ఉన్న ఒక మండల కేంద్రానికి ఒక మదర్సాను తెచ్చిపెట్టిరు. బీహార్కి వెళ్ళి పిల్లలు అని చెప్తారు. మాకు అనుమానం ఉంది అది కిషన్గంజ్ కాదు, బీహార్ కాదు. కిషన్గంజ్ ఈజ్ అడ్జసెంట్ టు బంగ్లాదేశ్. బంగ్లాదేశ్కి కిషన్గంజ్కి మధ్యలో బార్డర్ ఉంటుంది, గీత. వీళ్ళంతా పేరు కిషన్గంజ్ అని చెప్తారు, కానీ వీళ్ళ దగ్గర ఒక ఆధారం కానీ తల్లిదండ్రుల గురించి కానీ వాళ్ళు సరైన సమాచారం చెప్తలేరు. బహుశా ఈ మదర్సాలో ఉన్న 65 మంది కూడా బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చి జిన్నారంలో శిక్షణ పొందుతున్నట్టు నాకు అనుమానంగా ఉంది. ఇదే విషయం నేను రాష్ట్ర డీజీపీ గారిని కలిసినప్పుడు చాలా స్పష్టంగా చెప్పినాను. एपी में ग्रुप 1 मेन इम्तिहानात कल से शुरू होंगे। कल 13 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। विशाखापट्टनम में 2, विजयवाड़ा में 6, तिरुपति में 3 और अनंतपुर में 2। 3 तारीख को तेलुगु और 4 तारीख को इंग्लिश की अहलियत का इम्तिहान होगा, जबकि 5 से 9 मई तक ग्रुप 1 के मरकजी इम्तिहानात होंगे। इस महीने की 8 तारीख को हैदराबाद में हाइड्रा पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह रेवंत रेड्डी करेंगे। तालाबों, कंटों और जमीनों पर कब्जों के केसेस अब हाइड्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज होंगे।
माजी में दूसरे पुलिस स्टेशंस में दर्ज किए गए कब्जा के केसेस भी यहां मुंतकिल होने का इम्कान है। ये अक़दाम ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ जाएं। हमें सिर्फ अमन चाहिए। जो लोग दहशतगर्द हमले के जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाए। ये हमारा इंसाफ का मुतालबा है। पालगाम हमले में शहीद हुए भारतीय नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बीवी हुमानिश। अमर रहे शहीद विनय नरवाल, अमर रहे, अमर रहे। Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. जस्टिस भी चाहेंगे? Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood today? Yes. आप भी ब्लड All of us are डोनेट going to blood are donated. विनय ने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या उस पे आगे बढ़ेंगे? Yes, of course. ठीक है, थैंक यू। वागेंटार सरहद जुम्मा की सुबह पाकिस्तानी शहरियों के लिए खोल दी गई जो भारत में आर्जी वीज़ा पर मुकीम थे। पेलगाम हमले के बाद दोनों मुल्कों ने हिदायत जारी की कि ऐसे शहरी फौरन वापस जाएं। जुमेरात को पाकिस्तान ने सरहद बंद कर दी जिससे दर्जनों पाकिस्तानी शहरी फंस गए। जुमा को गेट खोला गया और भारत ने इंसानी बुनियादों पर अगली इत्तला तक वापसी की इजाज़त दी। अदाकार विजय देवराकुंडा के खिलाफ कबायली बरादरी के खिलाफ मुबैना तौहीन आमेज रिमार्क्स पर कानूनी शिकायत दर्ज की गई है। ये शिकायत ट्राइबल लायर्स एसोसिएशन ने फिल्म रेट्रो के 26 अप्रैल 2025 के प्री रिलीज इवेंट में दिए गए बयान पर की है। विजय ने कबायली अमल को 500 साल पुरानी बेमानी हरकतों उसे तशबीह दी जिसे तौहीन आमेज करार दिया गया। एसोसिएशन ने SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया है। वाक़ये पर तनाज़ो खड़ा हो गया है। వీళ్ళు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు వాళ్ళ మనుషులను చూసుకోలేక అక్కడ కరెంట్లు లేవు, నీళ్ళు లేవు, వచ్చి ఇక్కడ ఏం చేయాలని చూస్తున్నారో. ఇండియా పాకిస్తాన్ మీద అటాక్ చేయాల్సిన పనే లేదు. పాకిస్తాన్ వాళ్ళకే విరక్తి వచ్చి వాళ్ళ గవర్నమెంట్ మీద అటాక్ చేస్తారు. ఇట్లనే కంటిన్యూ అయితే అసలు 500 ఇయర్స్ బ్యాక్ ట్రైబల్స్ కొట్టుకున్నట్టు వీళ్ళు బుద్ధి లేకుండా మినిమం కామన్ సెన్స్ లేకుండా చేసే పనులు. 3 बच्चे तफरी के लिए तालाब में नहाने गए और हादसाती तौर पर डूबकर जाँ बहक हो गए। निर्मल जिला के पिद्दा कोतापली गांव के गणेश रेड्डी 13, राकेशता 10 और शरोएन कुमार 7 इस अफसोसनाक हादसे में जान से गए। गर्मियों की छुट्टियां होने की वजह से वो नहाने गए थे लेकिन पानी में डूब गए। मकामी लोगों ने लाशें निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। गांव में कोहराम मच गया। हैदराबाद के पुराने शहर के फलक नुमा इलाके में एक 27 साला नौजवान माजिद को बेरहमी से कत्ल करने का वाकया पेश आया जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। वाकया तिगिल कंटा के करीब क्लासिक स्टार पान महल के पास पेश आया जहां कुछ नामालूम हमलावरों ने मजीद पर अचानक खंजरों से हमला किया और शदीद जख्मी कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मजीद मौके पर मौजूद था जब अचानक चंद अफराद ने इस पर हमला कर दिया। वो चीखता रहा लेकिन हमलावरों ने किसी किस्म की रियायत नहीं की और इसे खून में लथपथ छोड़कर फरार हो गए। मकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी और जख्मी मजीद को करीबी हस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने फौरी तौर पर इलाका को घेरे में ले लिया और शवाहिद इकट्ठा करने का अमल शुरू किया। एडिशनल DCP मौके पर पहुंचे और जाए वारदात का मुआयना किया। पुलिस CCTV फुटेज की मदद से हमलावरों की शनाख्त की कोशिश कर रही है और मुमकिना मुश्तबा अफराद से पूछगुछ भी शुरू कर दी गई है। फलकनुमा और अतराफ के इलाकों में चेकिंग का अमल तेज कर दिया गया है ताकि हमलावरों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। वाकया के बाद इलाका में खौफ व हरास का माहौल है और मकतूल के रिश्तेदारों ने पुलिस से मुतालबा किया है कि हमलावरों को फौरी गिरफ्तार किया जाए और सख्त सजा दी जाए ताकि ऐसे वाकयात का यादा न हो। पुलिस ने मजीद की नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया है और कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए हमलावरों की तलाश के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई है।
चाचा जाओ की दवा करने को बात करना था मेरा बच्चा दुनिया का शरीर कैसा मेरा बच्चा मैं किसी भी तारीफ करो कम है लाखों में एक है मेरा बच्चा माँ बाप थोड़ा गैप दे दो थोड़ा हवा लगने का भाई थोड़ा भाई थोड़ा पानी सुकून से पिला सुकून से मारो सुकून से पियो सुकून से बोलो बोलो कुछ नहीं मालूम भाई क्या हुआ दुकान पिया के खोला और थोड़ी देर और खोल के मैं उठा के भी जाया उसको ना किसी के अच्छा दवा के बोला ना बुराई में है और किसी की दुश्मनी है क्या किसी से कुछ नहीं रहता बोलिए आप बोलिए माजिद की 27 अभी 1 घंटा हो रहा भाई खोल के घुमा था पानी किसी से लड़ाई झगड़ा था क्या उनका किसी के बीच में ही नहीं था उन्हें ना किसी से बात करता था ना कुछ कब्बे पे से टाइम हो गया घर को खाया सो गया ये पान का डब्बा उनका ही था ये हाँ उनका ही क्या नाम था उनका मोहम्मद माजिद एज क्या थी 27 क्या टाइम पे हुआ ये मालूम नहीं अभी 1 घंटा हो रहा था 1 घंटा 1.5 घंटा हो रहा डब्बा खोल आप थे यहाँ पर हुए खुद ये सो रहा था बच्चे एक कस्टमर घर पे ऐसा हुआ बोले भाग के आया मैं कितने जने मारे 2 जने थे कहते एक जना टकला था कहते एक जना पिंक टी शर्ट पे था कहते आपके पहचानत के है कुछ नहीं मैं देखा ही नहीं कुछ हुआ? मालूम ही नहीं मेरे को कहाँ पे मार पड़ी यहाँ सर पे कैसा चाकू से आज दोपहर में 150 अराउंड 2 से पहले हमारे इंस्पेक्टर फलकनुमा इंस्पेक्टर राजा रेड्डी को ये इन्फॉर्मेशन आया कि तिगलकुंटा पे मर्डर हुआ। जाके देखे तो वहाँ पे पान शॉप है, स्टार पान शॉप और काफ़ी शॉप पे एक डेड बॉडी है। वो मजीद है, वन ऑफ द पार्टनर ओनर है। इन और इनके भाई आजम दोनों मिलके एक के बाद एक पान शॉप चलाते। सम 2 अननोन पर्सन्स आके इनको बाहर बुला के मारे बोलते। सो अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम हो रहा, कौन मारे, क्यों मारे, वजह क्या है, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे पता चलेगा। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उनके भाई आजम से कंप्लेंट ले लिए, इन्वेस्टिगेशन जारी है। ज़्यादा 25 ईयर्स है। नहीं, अभी तक ये बच्चे से ऐसा कोई केसेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये शॉप पे और बिजनेस पे कोई पुराने केसेस नहीं है। कुछ भी हमारे नोटिस में अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा। सर सिगरेट के लिए झगड़ा हुआ, उनके साथ संबंध आ रहा है? नहीं, सिगरेट के लिए नहीं है। सिगरेट दूसरों से बेच रहे थे तो कोई मेरे फ्रेंड से बात करता हूँ बोल के जो आई विटनेस के हिसाब से बाहर जाके वहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ दिख रहा। वहाँ पे इस बारे में नहीं। पान शॉप में। सर पान शॉप नाम क्या? हाँ, पान शॉप। पूरा नाम क्या सर उनका? हीदरिंगर यू ट्रेन मेट्रो स्टेशन के करीब एक सड़क हादसा पेश आया जो कि PHB ट्रैफिक पुलिस हुदूद में आता है। अशोक लीलैंड गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई, जिससे सड़क बंद हो गई और शदीद ट्रैफिक जाम लगा। इत्तला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और JCB की मदद से गाड़ी को साइड में हटा दिया गया। इंतजामिया ने कहा कि ट्रैफिक को मामूल पर लाया जा रहा है और ड्राइवरों से ताउन की अपील की गई है। भील इस काम केस में कंट्रैक्टर मोए अल्दीन को ACB ने गिरफ्तार कर लिया। केस दर्ज होने के बाद वो दुबई फरार हो गया था। वापसी पर इमिग्रेशन हुक्काम के ताउन से हिरासत में लिया गया। मोए अल्दीन ने भेड़ें खरीदकर मालिकान को रकम अदा न करते हुए फरार किया। ACB की तहकीकात में 700 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तिगियां सामने आईं। अब तक 17 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। IKP में कांटों के न होने पर किसानों का सड़क पर एहतजाज, शदीद ट्रैफिक जाम। सूर्यापेट मंडल के राज नाइकटंडा में किसानों का धरना। लारियों के न आने की वजह से कांटे नहीं पड़े, किसानों की परेशानी। 5 दिनों में एक लारी आई तो कितने दिनों तक कांटे लगाएंगे। अकाल बारिशों और तेज हवाओं से फसलों का नुकसान होने के खौफ से किसानों का फौरी तौर पर कांटों की तलब।
नवीन ऑर्डर दे वो कह रहा है स्कूटी मियांपुर पुलिस ने शहर में जेर तामीर बड़े अपार्टमेंट्स को निशाना बनाकर एल्यूमिनियम सैनिटरंग बॉक्सों की चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इस टोली में 6 खुअतियन और 1 मर्द शामिल है। मुलजिमीन के कब्जे से तकरीबन 7 लाख रुपए मालियत का एल्यूमिनियम मटीरियल बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि तमाम मुलजिमीन एक ही कॉलोनी में रहा करते थे। हैदराबाद SIS इन्फोटेक की साबिक मैनेजर उनसुया वीमोरी को कंपनी का खुफिया डेटा चोरी करने के जुर्म में अदालत ने मुजरिम करार दिया। अगरचे वो 2005 में कंपनी छोड़ चुकी थी, लेकिन उन्होंने गैर मजाज तरीके से डेटा तक रसाई बरकरार रखी और ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। अदालत ने उन्हें 1 साल कैद और 25,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। ये शिकायत 2009 में कंपनी के एक ओहदेदार की जानिब से दर्ज की गई थी। रंगारेड्डी जिला में आउटर रंग रोड पर एग्जिट नंबर 12 के करीब एक कार हादसा पेश आया। कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 30 साला तरुमलेश मौके पर ही हलाक हो गया। हादसे में वो उछलकर सर के बिल गिरा और शदीद चोट की वजह से जांबर ना हो सका। इदबटला पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। राजेंद्र नगर कोर्ट ने खूनी गौस और उसके 2 साथियों शुएब उर्फ टट्टू और नसीर अल-दीन उर्फ सियाम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ये सज़ा 2023 में कत्ल की वारदात के मुकदमे में दी गई है। खूनी गौस का रिकॉर्ड खतरनाक है। वो 28 मुजरमाना केसों में मुलव्वस पाया गया है। वो निज़ाम्स म्यूजियम से 100 करोड़ के सोने के टिफिन बॉक्स चोरी के केस में भी गिरफ्तार हुआ था। मंगलुरु कर्नाटक में हिंदू तंजीम से वाबस्ता कारकुन साहस शेट्टी को नामालूम अफराद ने चाकुओं से बेरहमाना हमला करके कत्ल कर दिया। साहस शेट्टी गाँव रिक्शा ले और जिहाद मुखालिफ मुहिम्मात और मजहबी तब्दीली के खिलाफ सरगर्म थे। कत्ल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वाक़ये पर बीजेपी ने कांग्रेस हुकूमत पर हिंदू मुखालिफ पॉलिसियों का इल्ज़ाम आयद किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। कांग्रेस ने पेलगाम हमले के बाद हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ मुकम्मल ताउन देने का ऐलान किया, लेकिन कई दिन बाद भी कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आई। राहुल गांधी ने शुहदा के अहलखाना से मुलाकात करके उन्हें इंसाफ और शहीद का दर्जा देने का मुतालबा किया। मोदी हुकूमत ने बिलाखिर ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का ऐलान किया, जिसका सेहरा राहुल गांधी की मुसलसल मुहिम को जाता है। कांग्रेस मुतालबा करती है कि ये मरदमशुमारी दुरुस्त तरीके से हो, इसके नताइज पर अमल हो और समाजी इंसाफ की समत में पॉलिसी बनाई जाए।